Hi guys, welcome to the session. We are going to start the session in few minutes. Just waiting for two or few minutes to join. Where is the family of Seek Solution? Family of Seek Solution has not joined yet. Lot of lot of lot of people are joining, but the people who are supposed to join are not joining. People who are supposed to join are not joining. Can we begin the cinema? Let us begin the cinema. Okay. Are you in the position? Are you all in the position to begin the cinema? Please let me know. Okay, fine. So today, okay, we are going to start the hands-on about Angular. Okay, what is Angular? Why Angular? Okay, daily it is going to run on the same platform at 9. Okay, 9 onwards we will start. It is for the internal training purpose. Okay, but it is open for all people. Anybody who is supposed to join can join. Okay. Okay, fine. So let me share my screen. It is visible? Visible or not? दिख रहा है सबको? Is it visible to everyone? Wallpaper. I don't like. I hate wallpapers. Okay, let me remove this. I don't like wallpapers. Let me remove this bloody wallpaper, okay, so that you can see my screen very clearly. Wonderful. Is the screen visible to all? No background.
Some problem with the sound or what? Some problem with the sound, I guess. Is there some problem with the sound? Now is it okay? Now is it okay? Sound. Fine. Now it is clear. Okay. So let me start today's session with the center of the topic called, what is angular, sir? Okay. Angular. Okay. Before starting to this session, I just want to ask one small doubt, sir. Small question. Can I ask? Uh, can I ask the question to everybody? Can you tell me what is the, can you tell me, can you tell me, okay, can you tell me, you might have heard about this called React also, right? Angular and React, correct? You might have also heard about Vue.js, correct or not? Correct. Angular, React, Vue. Yes or no? ये बताइए, ये तीनों सेम है, अलग है, क्या है? From your understanding, what do you think? Same, different? What do you know? आप गूगल करके भी बता सकते हैं, नो इश्यूज. See, I don't want people to sit idle. Okay, everybody is supposed to type on the chat. Okay, I'm not teaching any animal. Okay, I'm not teaching to any kind of person who is deaf or dumb. Okay, you should be in the position to answer at least. Tell me this question. React, Angular, Vue, JS सेम है, अलग अलग है, क्या है, डिफरेंट है? बता सकते हैं? सौरभ का कहना है अलग है, अज्जू कह रहे हैं डिफरेंट है, सेम आउटपुट है, महेश कह रहे हैं डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट, शिवम का कहना है लिटिल बिट डिफरेंट. A lot of difference.
all works different. DB, Mahesh will not talk about DB, huh? Will not talk about DB. DB has nothing to do here. DB has nothing to do here. Okay, fine. See, let me brief you one simple thing. Okay, let me tell you one simple thing. You know, इन सबको रखो साइड, ठीक है? इन सबको गोली मारो, ठीक है? नथिंग टू डू विद दिस, नथिंग टू डू. Okay, I have one another question. Can you tell me one thing? What is the core technology behind this? Can everybody tell? What is the core technology behind this? Sir, what is the core technology behind this? Those who don't want to study, run away. Okay, I don't want to teach any person who is not in the position to reply or who is not in the position to understand anything. What is the core technology behind this? See, the core technology behind this all are, you know what? You know, आप इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी को देखो ना, रिएक्ट देखो, इसके बाद में ना जेएस जरूर लगा होगा. नोटिस किया है आपने? इसके बाद में जेएस जरूर लगा होगा. एंगुलर में जाओगे ना, एंगुलर में भी जेएस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? व्यू में भी जाओगे, देखो जेएस देखने को मिलेगा. So you know what is the core technology behind this is JavaScript. Okay, core technology is what's a JavaScript. Okay, core technology is what? Sir, JavaScript. Okay, now my question is, can you tell me what is the behavior of JavaScript? What is the current behavior of the JavaScript? मतलब JavaScript का behavior क्या है? Can anybody tell? JavaScript का what is the behavior? Can anybody tell what is the behavior of the JavaScript? JavaScript का behavior क्या है? Somebody saying don't know. Don't know. अच्छा, किसी ने ये सुना है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड? सुना है क्या? अगर किसी को नहीं पता क्लाइंट साइड सर्वर साइड क्या होता है तो पूछ सकता है. अगर किसी को नहीं पता तो पूछ सकता है, सर क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता, यू कैन आस्क, ठीक है? आप अगर सिली सा सिली क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, आई विल लेट यू नो, डोंट वरी. If you are going to ask the silly to silly question, I am going to respond. Don't worry. ऐसा कोई जिसको डिफरेंस ना पता हो, सर क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, if nobody knows. क्लाइंट साइड मींस जो चीज यूआरएल के थ्रू ब्राउजर पर रन होता है. ओके, आई नो लिल, बट प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट. ओके, टेल मी वन थिंग. ओके, let me explain. Before you know, see, let me tell you on this. चलो,
पहले समझते हैं सर व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन. सर व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड? ओके, if you know already, keep your mouth shut. Okay, let others be in the position to understand. Sir, what is client side and what is server side? Acha, tell me one thing. There is one Mr. Suppose Gupta is there. मान लीजिए ये है गुप्ता जी. Okay, let us consider this is Mr. Gupta ji. Okay, let us consider this is Mr. Gupta ji. Okay, he is running some kirana store. Okay, koi kirana store he is running. Okay, some kirana store it is going to run, some kind of kirana store. Definitely Gupta ji is going to be. So Gupta ji को हम क्या कहेंगे? बायर कहेंगे, सेलर कहेंगे? व्हाट वी विल कॉल गुप्ता जी? बायर और सेलर? he is the seller. Okay, he is the seller. Okay, he is the seller. Now suppose one person is going to come. कोई पर्सन आ रहा है. Okay, कोई आदमी आया. some person is going to come. Okay, some another person. Okay, some another person is going to come. Another person. Okay, one person came and one person is going to ask Gupta ji, Arey Gupta ji, can you please give me, okay, can you please give me 1 kg rice? Okay, 1 kg rice. 1 kg rice. Okay, 1 kg rice. The second one is, second person is going to ask, Arey, can you give me 100 ml of Harpixin? 100 ml of Harpixin. Okay, 100 ml of Harpixin. Okay. Can you tell me what are these? ये लोग कौन है? गुप्ता जी के लिए who are these? These are customers, correct? Customers or buyers, correct or no? Customers or buyers? Okay, customers or buyers? Yes or no? Customer or buyers? Okay. Now, अब इसी चीज को हम लोग कॉर्पोरेट का नाम सुना आपने? कॉर्पोरेट वर्ड सुना है आपने कभी? कॉर्पोरेट आपने सुना होगा. कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज है ना. कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज है कि नहीं? कॉर्पोरेट्स. तो यू नो इफ यू गो थ्रू कॉर्पोरेट्स, तो कॉर्पोरेट में ना यही टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी. कैसे बदल जाएगी? ये जो बंदा है ना, जो किराना स्टोर में जो गुप्ता जी हैं, ये क्या कर रहा है? ये जो है, जो ये भी मांग रहा है, करेक्ट? ये जो भी मांग रहा है, जो भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या जो भी अपनी ये रिक्वायरमेंट दे रहा है, ठीक है, उसको गुप्ता जी फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ मुझे. गुप्ता जी फुलफिलमेंट कर रहे हैं, हाँ या ना? करेक्ट है कि नहीं? तो एक तरीके से गुप्ता जी क्या हो गए? सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, गुप्ता जी इज व्हाट? सर्विस प्रोवाइडर. इट्स वेरी इजी सर. गुप्ता इज व्हाट? गुप्ता जी इज सर्विस प्रोवाइडर. करेक्ट. ओके. कॉर्पोरेट में हम कह सकते हैं कि गुप्ता जी इज अ सर्विस प्रोवाइडर. गुप्ता जी किसी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जैसी भी सर्विस लोग मांगते हैं वैसी भी सर्विस वो प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, वो गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है कि नहीं? अब तो ये सर्विस प्रोवाइडर हो गए. ठीक है, इन कस्टमर्स को जिन्हें हम बायर्स के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा बायर्स. अगर ये सेलर है तो ये बायर है. ठीक है, कल के दिन गुप्ता जी कह सकते हैं कि जो कस्टमर ए है और जो कस्टमर बी है, मेरी बात समझना, जो कस्टमर ए है और जो कस्टमर बी है, ठीक है, अगर ये कस्टमर ए पहली बार आया है, कितनी बार आया? अगर पहली बार आया है, पहली बार,
पहली बार आके सर्विस ले रहा है, ध्यान से सुनना, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम अगर कोई सर्विस ले रहा है, फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम, करेक्ट। और ये जो बी वाले हैं ये रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, गुप्ता जी के लिए कौन स्पेशल है, ए या बी, कौन स्पेशल है, कैन यू टेल मी। आप अगर गुप्ता जी की जगह पर होते तो आपके लिए कौन स्पेशल होता, ए या बी। ऑब्वियसली बी, राइट, ऑब्वियसली बी। रेगुलर वन इज अ स्पेशल वन, करेक्ट। नाउ यू नो इन कंपनीज, जब आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे ना, तो जब कंपनीज में या कॉर्पोरेट में, ठीक है, कॉर्पोरेट्स में जब आप जाओगे ना, तो जो आपका रेगुलर कस्टमर होता है, रेगुलर कस्टमर होता है, ठीक है, जो आपका रेगुलर कस्टमर होता है, ठीक है, वो एक स्पेशल कस्टमर होता है कि नहीं, वो आप स्पेशल कस्टमर होता है, स्पेशल स्पेशल कस्टमर होता है, अरे बोलो यार, स्पेशल कस्टमर होता है। तो रेगुलर कस्टमर स्पेशल कस्टमर होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और कंपनीज में जब कोई कस्टमर रेगुलर होता है, रेगुलर होता है, या कोई कस्टमर स्पेशल होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अरे ही इज अवर क्लाइंट, और नॉट, ही इज अवर क्लाइंट, करेक्ट और नॉट करेक्ट। ही इज अवर क्लाइंट। जब आपने बोला क्लाइंट ना, जब आपने बोला क्लाइंट, मेरी बात सुनना, मैं जो बता रहा हूं, जब आपने बोला क्लाइंट, तो क्लाइंट बोलने का मतलब ही यही हो गया कि आप उसको जानते हो, पहली बार नहीं मिल रहे हो आप, वो स्ट्रेंजर नहीं है आपके लिए, समझ रहे हो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, हाउ ए क्वेश्चन इज हाउ ए कैन बिकम, हाउ ए कैन बिकम, हाउ कैन, हाउ ए कैन बिकम, हाउ ए कैन बिकम बी, हाउ ए कैन बिकम बी। सर देखो, ये न्यू कस्टमर है, ठीक है, ये न्यू कस्टमर है, लेकिन बी जो है वो क्लाइंट है, बी जो है क्लाइंट है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि क्लाइंट बनने की क्या रिक्वायरमेंट होगी, बता सकते हो, हाउ वन पर्सन कैन बी अ क्लाइंट, बताओ। if if requirement, if the requirement of the customer is if the requirement of the customer is what, repeated, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रिपीटेड होती है, ओके, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स क्लाइंट, ओके, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स क्लाइंट, यस और नो, he automatically becomes client, ठीक है। अब आप मेरे से, अब नाउ, अब मैं क्या करता हूं ना, अब चलो मैं इसी को कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको रियल सिनेरियोस, ओके, रियल सिनेरियोस। यहां पर जो मिस्टर गुप्ता जी है ना, वो बेसिकली सर्वर है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गुप्ता जी की क्या एक ही दुकान हो सकती है क्या, गुप्ता जी क्या एक ही दुकान हो सकती है क्या गुप्ता जी की, नहीं ना,
तो भाई साहब ये तो पूरा एक मार्केट है कि नहीं? अरे बोलो यार, तो पूरा का पूरा एक मार्केट है कि नहीं? अब यहां पर एक सिनेरियो है, जरा समझना क्या, कि अगर कल के दिन मेरे पास कोई कोई दूसरा दूसरा सेलर आ जाता है मार्केट में, फॉर एग्जांपल कुकरेजा जी, ओके, सम कुकरेजा जी इज देयर, कुकरेजा सेलर इज देयर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुकरेजा के लिए ये कस्टमर बी कस्टमर न्यू हो, और कुकरेजा जी के यहां से कस्टमर ए जो है रेगुलर सर्विसेज लेता रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? है कि नहीं? सो what I want to mention is what I want to mention is what I want to mention is कि what I want to mention is कुकरेजा, कैन यू सी दिस, कुकरेजा जी, कुकरेजा जी के लिए कस्टमर बी मे बी न्यू, but customer A will be a client for Kukreja. Correct or not? Yes. I'm telling you, don't ignore this basics. Don't ignore this basics. Okay. If you ignore my basics, it is going to be very difficult for you to understand. Okay. Correct. Now, अब मुझे एक बात बताओ, देखो एक बात समझना, जैसे मैंने आपसे ये कहा ना कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बात समझो आप, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे कस्टमर हैं, तो जिसे आप मार्केट कह रहे हो ना, जिसे आप मार्केट कह रहे हो, तो आप देखो, जिसे आप मार्केट कह रहे हो वो बेसिकली क्या है, इंटरनेट है। बात समझो, जिसे आप मार्केट कह रहे हो वो बेसिकली क्या है, इंटरनेट है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और इस इंटरनेट में क्या है, इस इंटरनेट पे दो सिस्टम है, दो सिस्टम, दो सिस्टम का मतलब कंप्यूटर आप बोल सकते हो। ठीक है, दो सिस्टम है और वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है, तो ये जो मार्केट है ना, ये आपका इंटरनेट है। ठीक है, ये जो मार्केट है ये इंटरनेट है, बराबर। अब मुझे एक बात बताइएगा, मान लीजिए जो कस्टमर बी है, ठीक है, जो कस्टमर बी है ना अपना, कस्टमर बी की अपनी फर्नीचर की दुकान है। ठीक है, फर्नीचर की दुकान है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर गुप्ता जी कस्टमर बी के पास फर्नीचर लेने आते हैं, तो गुप्ता जी विल बिकम क्लाइंट और नॉट? गुप्ता जी विल बिकम क्लाइंट और नॉट? यस और नो? मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर गुप्ता जी या कुकरेजा जी में से कोई बंदा अगर कस्टमर बी के पास आके फर्नीचर ले जाता है, तो कस्टमर गुप्ता जी विल बिकम क्लाइंट और नॉट? अब मेरा क्वेश्चन बताना फिर से, अब मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गुप्ता जी है वो तो कस्टमर बी के पास तो पहली बार आए हैं, तो क्या ये क्लाइंट होंगे कि नहीं होंगे? सोच के बताना भाई साहब, सोच के बताना। गुप्ता जी, क्या बोले? गुप्ता जी कस्टमर बी के पास, जो कि कस्टमर बी है ना, कस्टमर बी की दुकान में आए हैं फर्नीचर लेने। ठीक है, तो ये इसके लिए क्लाइंट हुआ कि नहीं हुआ? you know the twist is, yes, he is client. Yes, he is client.
Okay, even though Mr. Gupta ji visited first time. This is the, ये मजेदार पार्ट है. अब 100% पक्का आप में से बहुत से लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा, ये कैसे यार, ये कैसे? How many of you want to know this answer? Please raise hands. Only 6% want to know. Others don't want to know. You can tell the answer. Anybody? Vijay, do you know the answer? Vijay. Already man. क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं. Already they know each other. Already they know each other. Correct? Correct or not? Now, तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक कस्टमर दूसरे के लिए क्लाइंट और क्या दूसरा कस्टमर पहले के लिए क्लाइंट हो सकता है कि नहीं? कोई भी दो पर्सन एक दूसरे के लिए क्लाइंट हो सकते हैं कि नहीं? मुझे आप ये बताओ. करेक्ट? करेक्ट और नॉट? करेक्ट. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो. Suppose there is one computer A, okay, there is one computer A, and there is another computer B. Okay, this is computer 1, this is computer B. एक कंप्यूटर और B कंप्यूटर. Okay, आई बात समझ में? एंड बोथ आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क वाया इंटरनेट. दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाया सम नेटवर्क. ओके, सम नेटवर्क दे आर कनेक्टेड यूजिंग इंटरनेट. वाया इंटरनेट बोल रहा हूं मैं, ठीक है? वाया इंटरनेट दे आर कनेक्टेड. ओके, वाया इंटरनेट दे आर कनेक्टेड. ओके, ओके, वाया इंटरनेट दे आर कनेक्टेड. नाउ ए को ए को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी. किससे? बी से. ओके, ए को बी से इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो ये क्या करेगा? इट विल रिक्वेस्ट. ये इसको क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा. ये क्या करेगा? इसको रिक्वेस्ट करेगा. ये इसको क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा. करेक्ट? यस और नो? इसको रिक्वेस्ट करेगा. ओके, अब अगर ए ने इसको रिक्वेस्ट किया है, किसको? बी को. तो अगर बी, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी हलवाई वाले के पास जाके समोसा मांग रहे हो, तो इसका मतलब है ना कि भाई वो उसके पास समोसे होंगे और वो समोसे प्रोवाइड करता होगा, तभी तो आप समोसा लेने गए हो, है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर आप ए सिस्टम अगर बी से कनेक्ट हो रहा है किसी भी माध्यम से, और बी उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर देता है, सर्विस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? अगर ये इसकी सर्विस को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हो गया. तो CSNIT के टर्म्स में, या आप बोल दो वेब टेक्नोलॉजी के टर्म में, वेबटेक में, वेबटेक मतलब जो आपके सब्जेक्ट होगा वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी के टर्म्स में
जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है, कोई भी बंदा जो किसी दूसरे सिस्टम को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, इट इज कॉल्ड एज क्या? सर्वर। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट है कि नहीं, क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है, इज ए अ क्लाइंट और नॉट? ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं आपको एक बात और बताता हूं। एक काम करते हैं, एक सिस्टम और लेते हैं, और एक सिस्टम और लेते हैं, और ये सिस्टम क्या करता है, ये भी इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ध्यान समझना बात को पहले, ये भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सी, नाउ दिस इज ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम, ये भी फर्स्ट टाइम, ये भी फर्स्ट टाइम। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज अगेन, इज सी अ क्लाइंट और नॉट? तो दोनों का आंसर है नो, दोनों का आंसर है नो। क्योंकि देखो, ए को और सी को ये पहली बार देखा है, ए को और सी को इसने क्या देखा, पहली बार देखा है कि नहीं? पहली बार देखा है। ओके, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कि ए जो है क्या करता है, ए ने अगली बार फिर रिक्वेस्ट की, सर्वर ने इसका कुछ काम किया, मतलब इसने कुछ रिक्वेस्ट में मांगा और इसने इसको बदले में दे दिया। ठीक है, बदले में कुछ दे दिया। तो बदले में जब कुछ देता है, जब कुछ भी सर्वर, तो उसे बोलते हैं रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स। दो चीजें होती हैं, जब एक कोई बंदा कोई भी रिक्वायरमेंट भेजता है तो आर से होता है रिक्वायरमेंट और आर से होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर उसको प्रोसेस करके उसके बाद क्या भेजता है, रेस्पॉन्स भेजता है। ठीक है जी, कितना क्लियर है? सबको ओके ओके समझ में आ रहा? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं जो मैं पूछने वाला हूं कि ए ने दो बार कनेक्ट करने की कोशिश की, ये ए का केस है। लेकिन सी के साथ समस्या क्या थी कि सी ने पहली बार जब कनेक्ट किया तो ना बी से कुछ डेटा चुराने की कोशिश की उसने, कुछ नोटिस समझे, डेटा चुराने की कोशिश की, सम डेटा, डेटा स्टील करने की कोशिश की, खरी कुछ डेटा चुराने की कोशिश की। तो एज अ सर्वर ये बताओ आप क्या करोगे, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आपको पता चल जाए कि कोई मेहमान आपके घर में रोज चोरी कर लेता है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम उस मेहमान को बुलाओगे कि बोल दोगे कि भैया ब्लॉक कर दोगे? बराबर। तो सर्वर भी ऐसे ही क्या करता है कि कोई देखो, सी जो है ना, सी बी के पास कोई काम लेने नहीं आया था, बी के पास कुछ लेने नहीं आया था, वो तो सिर्फ गुप्ता जी के यहाँ कितने कस्टमर आते हैं, कितनी सेल होती है, ये सब देखने आया था, कस्टमर चुराने आया था। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, ये जो बंदा है इसे ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इसको, सी को क्या कर देगा, ब्लॉक। और ए को क्या कर रहा है इसने, ब्लॉक तो किया नहीं, ए को तो ब्लॉक नहीं किया। तो इवन दो, तो देखो जो सी है ना, वो कभी क्लाइंट बन ही नहीं सकता, नेवर।
जबकि ए अगली बार से इट विल बी कॉल्ड एज क्लाइंट। कुछ समझ में आया? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट? देखो दो सिस्टम हम लोगों ने जानबूझ के लिए यहां पर ए और सी, ठीक है, सी यहां पर क्लाइंट नहीं बन पाया बट ए क्लाइंट बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी सी के बारे में जान चुका था। बात समझ में आई? क्योंकि बी सी के बारे में क्या कर चुका था? जान चुका था। आई बात समझ? अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बी ए के साथ कनेक्ट कर सकता है? क्या बी ए के साथ कनेक्ट कर सकता है, हाँ या ना? क्या बी ए के साथ कनेक्ट कर सकता है, हाँ या नो? अगर बी ए के साथ कनेक्ट कर सकता है तो इस केस में जो ए होगा, ए विल बिकम व्हाट? ए विल बिकम सर्वर एंड बी विल बिकम व्हाट? बी विल बिकम क्लाइंट। सिंपल, यस और नो? बट सर एक क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन है सर, बट एक क्वेश्चन है सर। बट एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि सर यहां क्लाइंट, अगर मैं ए और बी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ए एंड बी, मैं ए और बी की बात कर रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए में क्लाइंट बोला किसे जा रहा है? मशीन को। मशीन को, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बात बताओ, ए जो कस्टमर है, ए इज ब्लैक, ए कस्टमर इज ब्लैक एंड बी कस्टमर इज व्हाइट। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो व्हाइट कस्टमर होगा वही क्लाइंट होगा? टेल मी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो कस्टमर बी होगा, अगर वो व्हाइट है तभी वो क्लाइंट होगा? ऐसा तो नहीं है ना। जैसे कस्टमर के रंग से, रूप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर अज्जू पार्शियली करेक्ट, पार्शियली करेक्ट, ओके, पार्शियली करेक्ट। आई एम आस्किंग, जो ए है, ए के लिए क्लाइंट बोला किसे गया है? मशीन को या सॉफ्टवेयर को या किसको? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये जो बी है, मैं इसे फोन से ओपन कर सकता हूं? फोन से, फोन से, फोन से। फोन से कर सकता हूं ना? अच्छा, क्या मैं टैब से ओपन कर सकता हूं इसको? टैब से, टैब से, टैब टैब टैब, क्या मैं कंप्यूटर से बी को कनेक्ट कर सकता हूं? मेरा क्वेश्चन समझो पहले आप। क्या मैं ए को बी से कनेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं फोन को बी से कनेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं टैब को बी से कनेक्ट कर सकता हूं? टेल मी दिस, यस और नो? ऑफ कोर्स। यू नो अब ये बताओ, तीनों मशीन अलग अलग है कि नहीं? तीनों मशीन अलग अलग है भाई साहब, सोचने वाली बात है। तीनों मशीन अलग अलग हैं, यस और नो? ऑल दी थ्री मशीन्स आर डिफरेंट, all the three machines are different.
ठीक है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है इंटरनेट। बोलो हाँ या ना, वो है इंटरनेट। ठीक है, वो है इंटरनेट। लेकिन बाबू लोग इंटरनेट, इंटरनेट तो यार मीडियम है, इंटरनेट तो मीडियम है। इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आई है, इंटरनेट से भेजी नहीं गई। बात समझो, इंटरनेट तो मीडियम है। टंकी से पानी बाल्टी तक आया, टंकी सोर्स है, बाल्टी डेस्टिनेशन है, और पाइप जो है वो इंटरनेट है। इवन दो पानी पाइप से आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि पानी पाइप ने जनरेट किया है, पानी तो टंकी से ही आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट के अलावा इन तीनों चीजों में क्या कॉमन है, बता सकते हो? भाई मशीन तो अलग है, इंटरनेट कॉमन है कि नहीं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में एक ऐसी चीज कॉमन है ना, जो इंटरनेट के माध्यम से बी को रिक्वेस्ट कर रहा है। बता सकते हो क्या? कोई बता सकता है? Is somebody in the position to explain me this? समझ में आ रहा है क्या? Do you want me to open the mic? Everybody can speak. Somebody want to speak? What is common between all of them? क्लाइंट तो है अज्जू। आई डोंट नो हु दिस अज्जू इज। क्लाइंट तो है। अच्छा एक प्रैक्टिकल करोगे, एक प्रैक्टिकल करोगे, एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपके सामने मैं कुछ ओपन कर रहा हूं, ठीक है? ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, यहां पर सिक्योर लिख के आ रहा है ना? सिक्योर लिख के आ रहा है ना? अब बस सिक्योर लिखा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा सिक्योर लिखा है, ओके ठीक है। ये सिक्योर है, ये आपको पहले से पता था या आपको किसी ने बताया? अभिषेक कह रहे प्रो, हाँ दिव्यांशी कह रही है HTTP और HTTPS से पता चला। अरे कोई तो बताया, इधर आ जाओ, अभी बताया है। सर्वर ने बताया कि ये जो गेस्ट था, ये जो गेस्ट था ये बेकार था।
कुछ नोटिस किया तुमने? ये कस्टमर चोर था, नोटिस करो, ये कस्टमर चोर है और ये कस्टमर अच्छा है। ए इज ट्रस्टेबल, बी इज थीफ। आपको पता है सर्वर डिसाइड करता है कि आप सिक्योर हो कि अनसिक्योर। फील करो इस चीज को जो मैंने बताया है। आप जरा सोचो, जब भी सी आएगा, सुनो, जब भी सी सर्वर के पास जाने की कोशिश करेगा, मेरी बात समझो, सी जब भी बी के पास जाने की कोशिश करेगा, इनसिक्योर फील करेगा। बोलो हाँ या ना? करेक्ट। और ए जब भी आएगा, ए जब भी आएगा बी के पास, बी आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, अरे ए आए हैं। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ओके। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप लोग ये वेबसाइट खोल सकते हैं क्या अपने फोन पे? कोई नहीं खोल सकता। नो बडी कैन ओपन दिस, नो बडी कैन ओपन दिस, आई कैन चैलेंज। एक बार करके देखो, टेंशन मत लो। सर ये क्लास फोन से क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा? अरे फोन में जूम होना चाहिए था ना, जूम है। हाँ तो जब जूम नहीं है तो कैसे होगा? जूम होना चाहिए, जूम इंस्टॉल्ड होगा ना तो हो जाएगा। हाँ जी, कुछ बोल रहा हूं मैं आपसे। क्या आप लोग ये वेबसाइट ओपन करके दिखा सकते हैं अपने पास, अपने में ओपन कर सकते हैं? नहीं ओपन कर सकते यार। ये सिर्फ मेरे में ओपन हो सकता है और किसी के में तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपको मैं एक जादू दिखाऊं। जादू देखो, जादू जादू जादू, मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। क्या आपने अपने फोन को अनलॉक किया और ब्राउजर पे क्लिक करके आपने ये यूआरएल डाला होगा? बोलो हाँ या ना। ब्राउजर ओपन किया था? अमा तो इन तीनों में कॉमन क्या हुआ? चाहे आप कंप्यूटर में चलाओ तो भी आपको ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, फोन से चलाओ तो भी आपको ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, और आप चाहे टैब में चलाओ तब भी आपको ब्राउजर ही ओपन करना पड़ेगा। करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन जनरेट कहां से हुई? अब जरा एक काम समझते हैं, अब जरा एक काम समझते हैं, देखो। अब सब लोग, अब मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा हूं ना, अब आपको समझ में आएगा। क्या? सबकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भैया हमको ना आज की क्लास ज्वाइन करनी थी। बोलो हाँ या ना? सबकी रिक्वायरमेंट यही थी कि हमें आज की क्लास ज्वाइन करनी थी। रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें क्लास ज्वाइन करना था। तो उसके लिए आपने पोस्टमार्टम शाला.co.in को ओपन करना पड़ा होगा, है ना? है कि नहीं? ठीक है।
ये ओपन करना पड़ा होगा। तो जब आपको postmortemshaula.co.in खोलना पड़ा होगा, तो क्या ये चांस है कि आप में से कुछ लोग ने सिस्टम यूज किया होगा? आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है जो योगी जी ने टैब बांटे हो वो यूज किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने फोन से ये वेबसाइट खोली हो। बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है, रिक्वायरमेंट, यहां पर रिक्वायरमेंट तो अलग अलग मशीन से आ रही थी, सिस्टम से, टैब से, फोन से, लेकिन ये क्लाइंट नहीं है भाई। इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी कि इन तीनों ने ब्राउजर को पहले ओपन किया, जो कि ब्राउजर किससे कनेक्टेड था? इंटरनेट से। और ये इंटरनेट से जब कनेक्टेड होगा तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? 100% पक्का, आप सर्वर को क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? करेक्ट। तो तो यू नो, इन वेब टेक्नोलॉजी इन वेब टेक्नोलॉजी इन वेब टेक, क्लाइंट इज ऑलवेज कॉल्ड एज, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इज नथिंग बट ब्राउजर। ओके, क्लाइंट इज नथिंग बट ब्राउजर। समझ में आई? क्लाइंट इज नथिंग बट ब्राउजर। एंड व्हाट इज सर्वर सर? सर्वर कैन बी अ सर्विस। सर्वर जो हो सकता है वो कोई सर्विस हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, सर्वर जो है वो कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी ऐप हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकता है, यहां तक कि कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, लेकिन ब्राउजर तो बिल्कुल नहीं हो। याद रखना, ब्राउजर कैन नेवर बी अ क्या? सर्वर। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, सब ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आपने ये बताओ, इन सब का नाम सुना होगा? HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP, इसका नाम सुना है सबने? सुना है? सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन ये है, फेसबुक किस पे बना है? कोई बता सकता है? फेसबुक। PHP। सही बात है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या PHP इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे? नहीं। नो। तब भी क्या आप फेसबुक चला सकते हो? हाँ या ना? यस। यू तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पीएचपी 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 फिर भी आप चला सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? बता सकते हो? इसका मतलब पीएचपी आपके मशीन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। अरे बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं facebook.com ओपन कर रहा हूं, facebook.com ओपन कर रहा हूं, तो facebook.com, अब जरा एक चीज नोटिस करना, मैं आपके सामने एक कमांड चला रहा हूं। मैंने CMD ओपन किया और CMD के सामने मैंने लिखा, एक चीज नोटिस करना, ट्रेस RT
facebook.com, जरा देखते जाना, मैं आपके सामने कुछ कर रहा हूं, ठीक है? नोटिस करना कुछ होगा। ठीक है, ये जब तक चलता है ना तब तक मैं डिस्कशन कर लेता हूं, और क्या हो रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो एक बात बताओ, जब आप facebook.com लिखते हो तो आपके सामने फेसबुक का पेज आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये फेसबुक 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 का अपना कोई सर्वर होगा? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई, फेसबुक का अपना कोई सर्वर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा, होगा। अब जब फेसबुक का अपना सर्वर होगा तो जाहिर सी बात है, जब फेसबुक सर्वर पे है और सर्वर फेसबुक पे बना है और फेसबुक पीएचपी पे बना है, तो पीएचपी इंस्टॉल्ड कहां होगी मेरे भाई? सर्वर पे कि तुम्हारे सिस्टम पे? सर्वर पे। तो एक बात सुनो, बात सुनो। आप फेसबुक को एक्सेस कर पा रहे हो, बट कोड कहां एग्जीक्यूट हो रहा होगा बताओ मुझे? सर्वर पे कि तुम्हारे सिस्टम पे? तो ये हो रहा है सर्वर पे, ठीक है? लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, पूछो क्या? पूछो क्या? पूछो क्या, देखो। अच्छा एक बात बताओ, फेसबुक वाले जो बंदे हैं, फेसबुक जो है ना, पता है फेसबुक के पास अपना एक सर्वर है, आपको पता है? और फेसबुक के सर्वर का नाम पता है क्या है? एज स्टार मिनी। क्या नाम है? एज स्टार मिनी। जो फेसबुक का सर्वर है उसका नाम क्या है? एज स्टार मिनी। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर व्हाट इज द प्रूफ? हाँ, व्हाट इज द प्रूफ सर? हाउ कैन यू से दैट? यस और नो? हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन बता रहा हूं, जरा एक चीज दिखाता हूं। आपने यूराइज देखा है? यूराइज देखा है आपने? यूराइज? यूराइज देखा है? कभी आपने ये सोचा है कि इस यूराइज में जो नीचे है ये क्या लिखा है? कभी देखा है? कभी नोटिस किया ये क्या लिखा है? सर्वड बाई गंगा। कभी नोटिस किया ये क्या लिखा है? अगर आप लोग कभी ओपन करोगे ना तो ये सर्वर का नाम है, सर्वड बाई। ये गंगा, गंगा जो है, गंगा जो है सर्वर का नाम है भाई साहब। ठीक है? ठीक है। समझ रहे हैं किसका नाम है ये? सर्वर का नाम है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पता है, जरा इधर नोटिस करो, ये देखो क्या लिखा है? एज स्टार मिनी। क्या लिखा है? एज स्टार मिनी। लिखा है कि नहीं लिखा? और देखो बगल में, देखो क्या लिखा हुआ है? facebook.com। लिखा है कि नहीं लिखा? हमारा लिखा है। इसका मतलब अगर मैं ये यूआरएल यहां से कॉपी करूं और ब्राउजर पे जाके पेस्ट करूं, तो 100% पक्का फेसबुक खुलना चाहिए। हाँ या ना? चेक करें? अरे बोल भाई, चेक करें। देखो, ये देखो,
देखना, एंटर जैसे ही मारूंगा, ये देखो भाई, फेसबुक खुल गया। मैंने लिखा क्या था ये, और खुल क्या रहा है, facebook.com। सर ये कैसे हो गया? कुछ बात समझ में आ रही? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तो फेसबुक के सर्वर का नाम क्या है? एच स्टार मिनी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई फेसबुक के सर्वर का नाम क्या है? एच स्टार मिनी। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये बताओ, ये फेसबुक का जो पेज है, इसमें HTML दिख रहा है क्या तुमको? HTML दिख रहा है क्या? HTML दिख रहा है क्या? मुझे एक बात बताओ, ये जो HTML आपको दिख रहा है, ये आपके सिस्टम पे दिख रहा है कि सर्वर पे दिख रहा है? ये बताओ। आपके सिस्टम बराबर। क्या आपके सिस्टम पे कहीं PHP का कोड दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि फेसबुक का जो सर्वर है ना, अगर उसने जावा स्क्रिप्ट लिख दी, मान लो जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट लगाया, मान लो सर्वर ने सोचा कि एक अलर्ट लगा देते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये जो अलर्ट है, ये कहां दिखेगा? सर्वर में दिखेगा कि आपके पास दिखेगा? इस आपके सिस्टम पे ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब है HTML, JS और CSS, इवन दो ये सर्वर से आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इवन दो ये कहां से आ रहा है, सर्वर से। इवन दो ये सर्वर से आ रहा है, सर्वर से कैसे आ रहा है? एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, और PHP, और जो PHP है वो भी सर्वर से आ रहा है, लेकिन PHP कहाँ एग्जीक्यूट कर रही है? PHP एग्जीक्यूट कर रही है सर्वर की तरफ, और बाकी जो सारी चीजें हैं वो कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट कर रही हैं? आपके सिस्टम पे। आपका सिस्टम मतलब ब्राउजर। ठीक है, और ब्राउजर को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइंट। ये बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो JS है वो क्लाइंट साइड हुई कि नहीं? बोलो भाई। और जो PHP यहां हो गई, वो सर्वर साइड हो गई कि नहीं? बोलो, कोई डाउट है फिलहाल? अब आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। ठीक है जी, क्लियर है। अब अब आप मेरे से एक डाउट पूछ सकते हो, सर आप, बिल्कुल, जो जिसके साइड रिस्पॉन्स करे वो उसका साइड सबसे बेटर। ठीक है,
चलो एक कमाल की चीज दिखाता हूं मैं आपको। सर प्रूफ चाहिए सर। मैंने अभी आपसे बोला ना कि क्लाइंट एंड सर्वर साइड में दो चीजें होती हैं। एक होता है जिसको मैं बोलता हूं क्या, एक होता है जिसको मैं बोलता हूं क्या, एक होता है जिसको मैं बोलता हूं क्या, रिक्वेस्ट, और एक होता है रेस्पॉन्स। ठीक है जी, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रेस्पॉन्स। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। ठीक है जी। ब्राउजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। ब्राउजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। और सर्वर क्या करेगा? रेस्पॉन्स देगा। अरे बोलो। ठीक है। अब सर मुझे ये प्रूफ चाहिए कि ये जो पेज है ये फेसबुक का, ये सर्वर से आ रहा है। मुझे ये प्रूफ चाहिए कि ये पेज सर्वर से आ रहा है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये प्रूफ चाहिए। और ऑलवेज याद रखना, आपने एक क्वेश्चन ही पूछा सर ब्राउजर रिक्वेस्ट कैसे करता है, तो हमेशा याद रखना ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है यूआरएल के थ्रू। किसके थ्रू? यूआरएल और वेब एड्रेस के थ्रू। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे आपसे मिलना है तो मुझे क्या करना होगा? आपके घर आना होगा, और आपके घर आने के लिए मुझे आपके घर का एड्रेस पता होना चाहिए, है कि नहीं? उसी तरीके से ब्राउजर को अगर सर्वर तक पहुंचना है तो उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और ब्राउजर रिक्वेस्ट कैसे करता है? यूजिंग यूआरएल। ठीक है जी, कहानी क्लियर है? यूजिंग यूआरएल। हाँ या ना? मैं सच कह रहा हूं, क्लास भले ही बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही सारे बेसिक्स कवर करूंगा मैं। ठीक है, बहुत सारे बेसिक्स कवर होंगे, बहुत सारे मिथ भी रिजॉल्व होंगे। ठीक है। ठीक है जी, ये क्लियर है? चलो आओ इसका प्रूफ देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ ये है कि जो सर्वर का एड्रेस है ना, जो सर्वर, ये जो आप पेज देख रहे हो facebook.com का, ये जो facebook.com का आप पेज देख रहे हो, ये ना, ये पहले सर्वर से आया है। आपको पता है, ये सर्वर से आया है। ठीक है। और सर्वर क्या देता है बेटा? लोग रेस्पॉन्स देता है ना, है ना? सर्वर क्या देता है? रेस्पॉन्स देता है। तो मैं आपको कमाल की चीज दिखाऊं, ये जो आप पेज देख रहे हो, ये पेज सर्वर दे रहा है। देखना चाहते हो? दिखाता हूं मैं आपको, देखो। आपको दबाना है राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और आप जाओ नेटवर्क पे। किस पे जाओ? नेटवर्क पे। और नेटवर्क पे कर दो रिलोड। जैसे ही आप इसको रिलोड करोगे तो आपको कुछ सबसे, ठीक है, जैसे मैं रिलोड करता हूं तो आपको देखने को कुछ मिलेगा। ये देखो, मिला। और जैसे ही मैं यहां पर हेडर्स में क्लिक करता हूं तो देखो क्या मिला? रिक्वेस्ट मिला, रिक्वेस्ट मिला, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। देखो रिक्वेस्ट भी मिला होगा, रिस्पॉन्स भी मिला होगा, रिक्वेस्ट भी मिला होगा। मिल रहा है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी मिला है, रिक्वेस्ट भी मिला है। मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो। और इसके रेस्पॉन्स में जाके देखो, प्रीव्यू में, देखो ये रेस्पॉन्स कहां से आया। देख देख देखो, ये देखो रेस्पॉन्स कहां से आया है? facebook.com से। अरे रेस्पॉन्स कहां से आया भाई साहब? facebook.com से।
ठीक है जी, देख रहे हैं। अब एक चीज नोटिस करिएगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये टैग दिख रहा है, फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल्स इन योर लाइफ। देखो, और ये कहां पे आ रहा है, ये रिस्पॉन्स में आ रहा होगा, देखो मिला लो, ये वही तो है जो हमको यहां पर दिख रहा है। देखो, ये देखो, जो यहां दिख रहा है ये वही है, ये कहां पर आ रहा है, देखो रिस्पॉन्स में आ रहा है। तो भाई ये ब्राउजर में जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में रिस्पॉन्स है। इस रिस्पॉन्स का मतलब सर्वर ने भेजा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो आई होप आपको क्लाइंट एंड सर्वर समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो, व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड व्हाट इज सर्वर साइड एंड व्हाट इज बिहेवियर, व्हाट इज अ बिहेवियर। ठीक है, these 3 points we have discussed. Okay, thank you for today's session. Next we'll continue tomorrow. Okay, all detail में चर्चा करेंगे, and tomorrow we shall tell you what makes React and Angular different from other JavaScripts. Okay, thank you all. कल मिलते हैं, same time we'll shall start. Okay, you can ask your friends to join this session if they require. Okay, recording चाहिए किसी को? Recording चाहिए? Recording will be delivered in the same group. Okay, recording will be provided on the same group, don't worry. Thank you all. Let's meet tomorrow. Bye bye, take care, good night.